ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेस्तान्ने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतस्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोप्स गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तत्कांचन गौरांगी शिरादेव वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 10 में थे या हम लोग 11 में थे? कितना हो गया तक परसों तक? हरे कृष्ण प्रभु 11 से शुरू होगा। दंडवत प्रणाम। 11 से स्टार्ट होगा, ओके। हाँ, ये तो बहुत फेमस श्लोक है। हाँ। हम्म, तो ये श्लोक आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। हम्म। अवजानन्ति मां मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। तम हाँ, इसका अर्थ पढ़िए। हरे कृष्ण कुछ इंग्लिश में पढ़ दूँ। पढ़ लीजिए। बाहर हूँ इसीलिए हाँ बुक हाथ में नहीं। हरे कृष्ण। Translation: whose deride me when I descend in the human form, they don't know my transcendental nature as the supreme Lord of all that be. Purport: from the explanation of the previous verses in this chapter, it is clear that the Supreme Personality of Godhead, although appearing like a human being, it is not a common man. The personality of Godhead who conduct the creation, maintenance, and annihilation of the complete cosmic manifestation cannot be a human being. Yet there are many foolish men and who consider Krishna to be merely a powerful man and nothing more. Actually, he is the original Supreme Personality. As it confirms as the Brahma Samhita, Sarva Brahma Krishna is the Supreme Lord. There are many Ishwar controllers and one appear greater than another in the ordinary management of affairs in the material world. We find some official or director, and above him there is a secretary, and above him a minister, and above him a president. Even of them is a controller, but one is controlled by another. In the Brahma Samhita, it is said that Krishna is the supreme controller. There are many controllers, undoubtedly, both in the material and spiritual world, but Krishna is the supreme controller, Sarva Parma Krishna. His body is Satchit Ananda, non-material. Material body cannot perform the wonderful act described in previous verses. His body is eternal, blissful, and full of knowledge, although he is not a common man. The foolish deride him and consider him to be a man. uh, his body is called here Manushya because he is acting just like a man friend of Arjuna's, a politician involved in the battle of Kurukshetra. In so many ways, he is acting just like ordinary man, but actually his body is Satchit Ananda Vigraha, eternal bliss and knowledge absolute. This is confirmed in the Vedic language also Satchit Ananda Rupa Krishna.
Krishnaya, I offer my obeisances unto the Supreme Personality of Godhead Krishna, who is the eternal blissful form of knowledge. Gopal Tapani Upanishad 1.1. There are other descriptions in the Vedic language also. Tam ekam Govindam. You are Govinda, the pleasure of the sense, and the cows. Satchidanand Vigraha, and your form is transcendental, full of knowledge, bliss, and eternality. Gopala Tapant Upanishad 1.38. Despite the transcendental qualities of Krishna's body, its full bliss and knowledge, there are many so-called scholars and commenters of Bhagavad Gita who decided Krishna as an ordinary man. The scholar may be born an extraordinary man due to his previous good work, but his conception of Sri Krishna is due to a poor fund of knowledge. Therefore, he is called Mudha. Only foolish person consider Krishna to be an ordinary human being. The foolish consider Krishna as ordinary human being because they don't know the confidential activities of the Supreme Lord and his different energies. They don't know that Krishna body is a symbol of complete knowledge and bliss. That he is the proprietor of everything, that be and that he can award liberation to anyone, because they don't know that Krishna has so many transcendental qualifications, they deride him. Nor do they know that the appearance of the Supreme Personality of Godhead in this material world is a manifestation of his internal energy, is the master of material energy, as has been explained in several places. Mama Maya Durataya. He claimed that the material energy, although very powerful, is under his control, and whoever surrender him onto him can get out of control of his material energy. It is if a soul surrendered to Krishna can get out of the influence of material energy, then how can the Supreme Lord, who conduct the creation, maintenance, and alienation of the whole cosmic nature, have a material body like us? So this conceptions of Krishna is complete foolishness. Foolish person, however, cannot conceive that the personality of God, that Krishna, appearing just like ordinary man, can be the controller of the atoms of the gigantic manifestation of the universal form. The biggest and the minutest are beyond their conception. So they cannot imagine that a form like that of a human being can simultaneously control the finite and the minute. Actually, although he is controlling the infinite and the finite, is apart from all this manifestation. It is clearly stated concerning this yogam, avisharam, his convincible transcendental energy, that he can control the infinite and the finite simultaneously, and that he can remain aloof from them. Although the foolish cannot imagine how Krishna, who appears just like a One being. human being, can control the infinite and the finite. Those who are pure devotees accept this, for they know that Krishna is Supreme Personality of Godhead. Therefore, they completely surrender unto Him and engage in Krishna consciousness, devotional service of the Lord. There are many controversies between the impersonalists and the personists about the Lord appearance as a human being. If we concern Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the authorities text for understanding the science of Krishna, that we can understand. एक second. हाँ प्रभु जी, sorry. And that Krishna is Supreme Personality of Godhead. He is not an ordinary man, although he appears on this earth as an ordinary human. In the Srimad Bhagavatam first canto, first chapter, when the sages headed by Shaunaka inquired about the activities of Krishna, they said, कृतवान कीर्तवन किल की कर प्रभु जी आप बोलिए. कीर्तवन कृतवान किल किल कर कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः. Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, along with Balram, play like a human being, and so marks they perform many superhuman acts. The Lord appearance as a man bewildered the foolish. No human being could perform the wonderful act that Krishna performed while he was present on this earth. When Krishna appeared before his father and mother, Vasudeva and Devaki, he appeared with four hands, but after the prayers of the parents, he transformed himself into ordinary child
as stated in the Bhagavatam 10.3.46, Bahuva Prakrata Shishu. He became just like ordinary child and ordinary human being. Now here again it is indicated that Lord appearance as an ordinary human being is one of the features of this transcendental body. In the 11th chapter of Bhagavad Gita, also it is stated that Arjuna prayed to see Krishna's form of four-hand, Tesham Rupena Chaturbhujena. After revealing this form, Krishna, when patient by Arjuna, again assumed his original human-like form. Manusham Rupam, the different features of Supreme Lord are certainly not those of an ordinary human being. Some of those who derive Krishna, who are infected with the Mayavadi philosophy, quote that the following verses from the Srimad Bhagavatam to prove that Krishna is just an ordinary man. Aham sarvesha bhuteshu bhuta atma vashisthita sada. The Supreme is present in every living entity. We should better take note of this particular verse from the Vaishnava Acharya like Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, instead of following the interpretation of unauthorized person who derived Krishna. Jiva Goswami, commenting on this verse, say that Krishna, in his millenary expansion as Paramatma, is situated in the moving and a non-moving entity as a super soul. So any neophyte devotee who simply give his attention to the Archa Murti, the form of Supreme Lord in the temple, does not respect other living entities, uselessly worshipping the form of the Lord in the temple. There are three kinds of devotee of the Lord. The neophyte is in the lowest stage. The neophyte devotee give more attention to the deity in the temple than to other devotees. Vishwanath Chakravarti Thakur warned that this sort of mentality should be corrected. A devotee should see that because Krishna is present in everyone's heart as Paramatma, everybody in the embodiment or the temple of the Supreme Lord, so as one offer respect to the temple of the Lord, he should similarly properly respect each and every body in which the Paramatma dwells. Everyone should therefore be given proper respect and should not be neglected. There are so many impersonalists who derive temple worship. They say that since God is everywhere, why should one restrict himself to temple worship? But if God is everywhere, is he not in the temple or in the deity? Although the personalist and the impersonalist will fight with one another perpetually, a perfect devotee in Krishna conscious know that although Krishna is the supreme personality, he is all prevailing as confirmed in the Brahma Samhita. Although his personal abode is Goloka Vrindavan, and he is always staying there by his different manifestation of energy, by his plenary expansion. He is present everywhere in all parts of the material and spiritual creation. Hare Krishna. धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को भगवान पिछले श्लोक में बता रहे थे कि मेरे से प्रकृति आती है और प्रकृति से सारे जीव निकलते हैं। तो जिस तरह से राजा के बिना कोई कुछ नहीं कर पाता है, मेरे बिना भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर अर्जुन कहता है कि ठीक है भगवान, लेकिन ये तो सबको पता है कि जो महाविष्णु है, जो कि कारण सागर में मेरा क्लास चल रहा है। मेरा क्लास चल रहा है। ओके, तो जो महाविष्णु है वो कारण सागर में विश्राम करते रहते हैं और उनका रूप कैसा सच्चिदानंद रूप है और उनमें से ब्रह्मांड निकलते हैं। हाँ, लेकिन जब आप वसुदेव के रूप में आते हैं तो आप उनके ही अंश हैं। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आप भगवान विष्णु के अंश हैं। तो कृष्ण कहते हैं वो छोड़ो अर्जुन, अवजानंती मामूढ़ा मानुषम तन्नो आश्रितम। जो मूर्ख लोग हैं कई बार वो तो मुझे समझता है कि मैं साधारण मानव जैसा हूं। कारण क्या है? परम भावम अजानंतः। उनको ये पता नहीं है कि मेरा जो ये रूप है ये कैसा है, परम भावम। भाव मतलब जो बार बार आता है संसार में, इस सब के परे है। तो मेरा शरीर कैसा है? आध्यात्मिक है। बल्कि जो मेरा शरीर है वो कारुण्याक्षाय विष्णु से भी ऊपर है। ये कौन सा रूप है?
हाँ, मम भूत महेश्वरम, ये ब्रह्म का मूर्तिमान स्वरूप है। तो उस स्वरूप से महाविष्णु भी बाहर निकलते हैं। जैसे गोपाल अपने इस उपनिषद में लिखा हुआ है, तमेकम गोविंदम सत्यनानंद विग्रहम वृंदावन सुर भूररूहा भावनाशिनम सततम सा मरुद्गणो हम परमया सुतया तोषयामि। हाँ, तो भगवान कहते हैं, या फिर कुछ भक्त कह रहे हैं, श्रुतियां कहती हैं कि हम हमेशा उन भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अकेले नहीं कर रहे हैं, मरुदगण जैसे बड़े बड़े जो देवता हैं, उनके साथ कर रहे हैं। किसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है? वो भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह हैं, जो वृंदावन में रहते हैं और वहां पर एक कल्प वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। तो उन भगवान गोविंद की को संतुष्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है, नराकृति परब्रह्म, भगवान जो मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं, वो कौन है? कृष्ण ही है। क्योंकि भगवान नारायण के चार हाथ होते हैं, तो कृष्ण के बारे में बात चल रही है। तो जो नर आकृति जैसी दिख रही है, वो नर नहीं है, वो पर ब्रह्म है, वो ब्रह्म के भी परे है। हाँ, तो इस तरह से भगवान कहते हैं, आ तो मेरा रूप साधारण मनुष्य जैसा नहीं है, वो कैसा है? परम भावम, इस भौतिक सृष्टि के परे है। और यशोदा मैया ने भी मेरा वो रूप देखा था। जब कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, यशोदा ने बोला कि मुंह खोलो, तो कृष्ण ने मुंह खोला और सारे ब्रह्मांड उसके अंदर दिखाई दिए। तो यशो उससे सिद्ध हुआ कि कैसे भगवान का रूप सच्चिदानंद रूप है, साधारण रूप नहीं है। हाँ, ठीक है। और फिर भगवान कहते हैं मम भूत महेश्वरम। हाँ, महा ईश्वर, इसको प्रभुपाद भी काफी डिटेल में बताता है कि अलग अलग कंट्रोलर है, ईश्वर है, लेकिन मैं ब्रह्मा जैसे महान देवता उनको भी कंट्रोल करके रखता हूं। तो सब लोग किसी ना किसी को कंट्रोल करते हैं, और किसी ना किसी के द्वारा कंट्रोल होते हैं। हाँ, जैसे सोनल माता जी पढ़ाती है, तो बच्चों को कंट्रोल करके रखती है, एटलीस्ट कोशिश तो करती है। लेकिन उनके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे वो उनको कंट्रोल करेंगे, पर उनको भी कोई और कंट्रोल करेगा। गवर्नमेंट का भी कंट्रोल हम सबके ऊपर आता है, टैक्स देना पड़ता है। तो उस तरह से हर किसी के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला है। पर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाले नहीं है, वो कौन है? वो कृष्ण है। वो कृष्ण है। हाँ, जैसे भगवान कहते हैं, आ, ये भी भागवतम में आता है, साब्दम ब्रह्म दधा वपुहु, कि सतयुग में भगवान ने वो रूप कर्दम मुनि को दिखाया था, जिसको मात्र वेदों द्वारा ही समझा जा सकता है। तो वो रूप कैसा हो सकता है? वो क्या रूप कैसा है? आध्यात्मिक रूप है। ओके। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि मायावादी कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है, भगवान मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तो प्रभुपाद कहते हैं, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी तो है ना। ऐसा तो आप नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं सब जगह है, मंदिर में नहीं है। तो भगवान सब जगह तो मंदिर में भी है, विग्रह में भी है। और सबसे मुख्य चीज क्या है कि वो भगवान सब जगह पर हम सब जगह नहीं देख सकते हैं, इसलिए भगवान विग्रह रूप में आते हैं, ताकि हम उनको देख सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। उसके अलावा प्रभुपाद ने आ, तीन तरह के भक्ति बताए, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ भक्त वो होते हैं जो विग्रह पूजा अच्छे से करते हैं, पर न भक्तों का आदर करते हैं और न जीवों का आदर करते हैं। ये कनिष्ठ अधिकारी कहलाते हैं। उससे जो थोड़े एडवांस होते हैं उनको बोलते हैं मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी भक्त कौन है? वो हैं
जो ईश्वर तद अदिनेषु बाल शिशु दुष्टसु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति सब मध्यमा। तो ईश्वर भगवान से वो क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तद अधीनेशु मतलब उनके जो अधीन भक्त हैं उनसे क्या करते हैं, मित्रता करते हैं। हम्म। बाल शिशु जो निर्दोष लोग हैं उन पर कृपा करते हैं, उनको भक्ति सिखाते हैं। हाँ। और दुष्टसु और जो लोग द्वेषी लोग हैं उनकी अपेक्षा करते हैं, उनको दूर रखते हैं अपने से। और जो लोग हमेशा हर जगह भगवान को देख पाते हैं वो उत्तम अधिकारी कर लेते हैं। हाँ। तो उनको वो उत्तम उत्तम अधिकारी होते हैं। क्या श्लोक था वो? भगवान भगवान आत्मना आत्मनि पत्तमनि। ठीक है। जो सब में भगवान को देख पाते हैं और भगवान को सब में देख पाते हैं वो उत्तम अधिकारी कहलाता है। तो हर चीज का भगवान से कनेक्शन देख पाते हैं। ठीक है। तो अब कोई बोलता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि आ, आपका जो शरीर है असाधारण है। लेकिन फिर अर्जुन पूछता है, लेकिन जो आपको एक साधारण मनुष्य मानते हैं उनका क्या परिणाम होता है? तो उनका क्या परिणाम होता है भगवान अगले श्लोक में कहते हैं। ये भी बहुत फेमस श्लोक है, ये भी आप पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं। मोघासा प्रभु इसमें मोघ कर। एक हाँ। सवाल था प्रभु। हाँ इसमें बोलिए। इसमें था कि अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ध्यान देते हैं और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भक्तों में तीन प्रकार के, जिसमें नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी में। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर में आचार्य विषय पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्तों को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह की कोई भक्त भगवान में मंदिर का सम्मान करता है, भक्त मंदिर में सम्मान, वैसे ही वो प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। मतलब हम्म। इसका मतलब यही है कि जिस प्रकार से हम लोग को कि ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी को, मतलब वो उसी प्रकार से वैष्णव की तरह सम्मान करना चाहिए जो वैष्णव नहीं 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 है। नहीं, देहो नाथ हम्म। यथा यथा तबे तो गायबो हरे नाम सुखे अपराध यथा। यथा यथा का मतलब क्या है? अब शेर आपके सामने आया, अब ये थोड़ा ना उसको वांछा कल्पतरु हम्म। ऐसा कृपा सिंधु एवं हाँ प्रणाम हाँ करें। हाँ हाँ अब हाँ वो बोलेगा महाप्रसादे गोविंदे, वो तो हाँ खुश हो जाएगा। खा जाएगा। हाँ। हाँ तो इसलिए यथा यथा का हाँ मतलब क्या है कि जो जिसकी श्रेणी हो उसके साथ सम्मान करते हैं। सम्मान का मतलब ये है कि आ, अगेन ये चार चीजें जो मैंने बताई है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, ये मध्यम अधिकारी होता है। भगवान हम्म से प्रेम करना है, हम्म हम्म कृपा और मैत्री किससे करनी है, भक्तों से करनी है। जो हम्म, साधारण निर्दोष लोग हैं उन पर कृपा करनी है प्रचार करके। और उपेक्षा किसी करनी है जो हाँ। भगवान से द्वेष करते हैं, उनसे अपेक्षा करनी है। और यही उनका उनसे दूरी सम्मान है। बनानी है, दूरी उनसे बनानी है, दूर, हाँ उनसे दूरी दूरी बनानी बनानी है। है। हाँ। और यही उनका उनके लिए सम्मान है। जैसे जीवे दया, भगवान बोले ना, हरि नाम नामे रुचि जीवे दया और वैष्णव सेवा। हम्म। तो वो है। महाप्रभु बताए हैं तो जीवे हाँ। दया में। हाँ जीव दया करना है पर उसकी करनी है जो दया करने लायक है। आप कोई बंदूक अच्छा। लेके आया और आप सोचेंगे हम दया कर लेंगे, तो ठीक है भाई, महाप्रभु है हरिदास ठाकुर है तो बात अलग है। अगर वो नहीं है तो हम लोग। चुपचाप भागिए वहां से। हाँ जी प्रभु। हरे ठीक है। कृष्ण। हरि। तो इस तरह से अर्जुन कहते हैं, तो भगवान फिर अगला श्लोक कहते हैं, मोगासा मोग कर्माणो मोग मोगाशा मोग कर्माणो कर्मणो मोघकर्माणो कर्माणो मोग गानावचेतसः मोघो मोग ज्ञाना ज्ञानाविचेतसः विचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसीं राक्षसीमासुरीं मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः।
प्रकृति प्रकृतिम मोहिनीम मोहिनीं सोहिम सीता। पढ़े प्रभु क्या? हाँ पढ़िए पढ़िए। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावना मृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। ऐसे असुरी ऐसे आसुरी दृष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि समान जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाड्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को समान व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेति भौतिकम देहम कृष्णाय परमात्मनम स सर्वस्माद् बहिष्कार्य प्रोत्स्मात् विधानत मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानमाचरितम। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसका तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या रखते हैं। उनके भाग में जन्म जन्मांतर नास्तिकता तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और वह धीरे से वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान उन लोगों के बारे में बता रहे हैं, जैसे अर्जुन पूछता है कि जो लोग आपको साधारण मनुष्य समझते हैं उनकी क्या गति होती है। तो वहां भगवान क्या बता रहे हैं? मोग आशा। मोग आशा किसके लिए बता रहे हैं? भक्तों के लिए बता रहे हैं। तो जो लोग भक्ति करते हैं और वो सोचते हैं कि कृष्ण का शरीर मनुष्य जैसा है, तो भगवान क्या बोलते हैं? उनकी आशा पूरी नहीं होगी। उनकी आशा पूरी नहीं होगी, वो भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि भारत के अंदर आप देखेंगे, आपको लगेगा ये आदमी बड़ा भक्त है, पर मेंटेलिटी क्या होती है? अरे ये हमारा बेटा है ना, ये कन्हैया जैसा है। ये हमारी बेटी है ना, ये तो राधा जैसी है। कारण क्या है? वो राधा रानी को कृष्ण को भी साधन मानते हैं, जैसे जैसे वो भी कोई मनुष्य हो। तो भगवान क्या बोलते हैं? वो लोग कितना भी भजन कर लें, उनको भगवत धाम मिलने वाला नहीं है। हम्म। तो इसीलिए तत्व से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म कर्म च मयि एवं यो वेति तत्वतः, तत्व से समझना चाहिए। तो कई बार भक्त लोग भी कई करते हैं, आलस कर जाते हैं तत्व सीखने में। अरे प्रभुपाद ने इतना सारा ये सब तत्व लिखा है, कौन पढ़ेगा उसको? थोड़ा लीला सुनाइए, बस स्टोरी सुनाते रहिए, हो जाएगा काम। वैसा नहीं होता है। तो भगवान क्लियरली बोला मोग आशा। तो भक्त है तो उसको भगवत धाम नहीं मिलेगा।
और फिर क्या बोल रहा है, मोग कर्माणो। मोग कर्माणो किसके लिए बोलना है, जो कर्मकांडी होते हैं या कर्मयोगी होते हैं, तो उनको ना ही स्वर्ग मिलेगा और ना ही ब्रह्म मिलेगा। तो वो लोग चाहते हैं कि स्वर्ग मिले या फिर ब्रह्म मिले। भगवान कहते हैं मोग कर्माणो, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। फिर मोग ज्ञान, मोग ज्ञान किसके लिए लिखा हुआ है, जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए लिखा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो ब्रह्म में लीन हो। भगवान कहते हैं जो मेरे शरीर को भौतिक मानता है उसको ब्रह्म नहीं मिलेगा, वो उसको ब्रह्म नहीं मिलेगा। तो जो मायावादी हैं वो सोचते हैं भगवान का शरीर भौतिक है, इसलिए उनको ब्रह्म नहीं मिलता है। पर जो वाकई में ज्ञानी होते हैं, जिनको मालूम है कि भगवान दिव्य है, लेकिन उनकी इच्छा होती है किसमें, ब्रह्म में लीन होने की, तो वो लोग जा सकते हैं, वो ब्रह्म में लीन हो सकते हैं साधना करके। तो फिर उनको क्या मिलता है, ये सब नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा। फिर भगवान क्या बोलते हैं, राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृति मोहिनीम सिता, उनको राक्षसी और आसुरी योनियां मिलेंगी, और प्रकृति के प्रभाव के कारण वो वापस इस संसार में आएंगे और माता के गर्भ में प्रवेश करेंगे। इसीलिए आ, भगवान के संबंध में तत्व क्लियर होना बहुत जरूरी है। और ये कौन, कृष्ण स्वयं बोल रहा है कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो मेरे विषय में तत्व क्लियर होना चाहिए। और हमारे आचार्य लोग भी हैं जो आ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सिद्धांत बोलिया चित्ते न करे आलस, यह होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत समझने के लिए आलस मत करो, बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, छोड़ दो। हाँ, अरे इस एज में आके क्या हम भक्ति शास्त्री का एग्जाम देंगे, क्या प्रभु जी, भक्ति जानने के लिए, भक्ति करने के लिए एग्जाम एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है। तो केवल आलस कर जाते हैं, लेकिन उसमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत समझने से कृष्ण के चरणों में अपनी बुद्धि स्थिर होती है, स्ट्रांग होती है। हम्म। तो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा विद्वान बनना है, और उसके लिए पढ़ाई पढ़ाई लिखाई की बहुत जरूरत नहीं है। जैसे एक बार श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर, उनका जो चैतन्य गौड़ीय मठ है मायापुर में, उसके बाहर वो एक भक्त से बात कर रहे थे। उनका सेवा क्या थी, वो गार्डनिंग करते थे। आपने देखो बाहर गार्डन है वहां पे गौड़िया मठ में उधर पे, तो वो गार्डन संभालते थे, उनकी यही सेवा थी। तो श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, वो पूछ रहे थे, वो उत्तर करते जा रहे थे। फिर उन्होंने काफी डीप क्वेश्चन पूछे, उसके भी उन्होंने उत्तर कर दिए। तो वो कहने लगे देखिए आपको तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो आपको इतना सारा ज्ञान कैसे है। तो वो कहने लगे हम गुरु महाराज, हमको पढ़ना लिखना नहीं आता, सुनना तो आता है। तो जब आप क्लास देते हैं तो हम सुनते हैं, उसको सुनते सुनते हमको समझ में आ गया। तो उस तरह से सिद्धांत सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन उसको सीखने में आलस नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भक्ति शास्त्री क्लास भी नहीं कर पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सिद्धांत सीखना है। तो जितना व्यक्ति सिद्धांत से सीखेगा, उतना कृष्ण के चरणों में मन स्थिर होगा। अन्यथा जो सिर्फ इमोशनली भगवान की सेवा करते रहते हैं, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, कलकत्ता में भी कुछ एक कांग्रेस में माता जी थी, वो बोलती थी लड्डू गोपाल तो हमारा बेटा है, गोद में खिलाती थी उनको। इतना हद था कि वॉशरूम में ले जाके साबुन से लेके साबुन ला के नहलाती भी थी। तो वो जो क्या बोलते हैं आ, भावना है, वो भावना आध्यात्म नहीं है, वो भौतिक भावना ही है। तो भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हम भगवान से ही समझते हैं। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो लोग मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं, उनको आश्रय को राक्षसी योनियों में जाना पड़ता है, उनको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है।
तो भगवान क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले श्लोक में। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ू प्रभु। हाँ पढ़िए। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निम्न मग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है, वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, तो ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है, तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रकृति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्य के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। हरि बोल। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो भक्त मेरे भक्तों की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, वो क्या बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रितम। तो दैवीम के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब दैवीम का होता है मतलब देवताओं का। तो जैसे ही कोई भक्ति करने लगता है, ऑटोमेटिकली वो सत्वगुण में स्थित हो जाता है। नेचुरली भक्त लोग सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, जप करते हैं, वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो रजोगुण तमोगुण खत्म होता है, सत्वगुण बढ़ने लगता है। उस तरह से उसके अंदर, भक्त के अंदर देवताओं गुण आने लगते हैं। एक और मतलब देवी प्रकृति का अष्टम का मतलब है कि वो देवी प्रकृति जो है, आध्यात्मिक प्रकृति श्रीमती राधा रानी, तो श्रीमती राधा रानी का वो लोग आश्रय लेते हैं। हाँ, और इस तरह से जो मेरा रूप है, दो हाथों वाला, उसकी पूजा करते हैं। हाँ, तो भजंती अनन्य मनसः, तो उनका मन कर्म ज्ञान इत्यादि में नहीं जाता है। किस में जाता है, मात्र भक्ति में ही लगा रहता है, शुद्ध भक्ति में। कर्म में सिर्फ भक्ति नहीं, ज्ञान में सिर्फ भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति में। हाँ, क्योंकि उनको क्या पता है कि भूत आदिम, कि मैं ब्रह्मा जैसे सारे जीवों का आदि हूं। जैसे भगवान कहते हैं ना, मैं तदमिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ। तो उनको पता है कि सारे जीव कहाँ से आए हैं, भगवान से ही आए हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान से आए हैं। और अव्यय हम, उनको पता है कि मेरा शरीर कैसे अव्यय है, वो सच्चिदानंद का बना हुआ है, वो खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। हम्म। हमारे शरीर नष्ट हो जाते हैं, बचपन का शरीर नष्ट हो गया, जवानी का मिला। जवानी का शरीर जब नष्ट हो जाता है तो बुढ़ापे का मिलता है। बुढ़ापे का शरीर मिल जाता है तो फिर से नया शरीर प्राप्त होता है। लेकिन भगवान के सारे शरीर कैसे होते हैं, नित्य होते हैं।
भले वो पूतना का वध करने वाला छोटा शरीर है या फिर महाभारत वाला शरीर है, सारे भगवान के शरीर कैसे हैं? इंडेस्ट्रक्टिबल है, वो खत्म नहीं होते हैं। और इस तरह से जब उनको पता चल जाता है कि मैं ही पूजा के योग्य हूं, हाँ, कम से कम इतना पता होना चाहिए कि भगवान कैसे हैं, दिव्य हैं, सच्चिदानंद के बने हुए हैं। और ये पता करके भक्त क्या करता है, ज्ञाता माम। तो वो जान जाता है कि मैं ही पूजा के योग्य हूं, इसीलिए वो कर्म ज्ञान का आश्रय नहीं लेते हैं, सिर्फ भक्ति का आश्रय लेते हैं और मेरी भक्ति करते हैं। मेरी ही भक्ति करते हैं, अन्य किसी की भक्ति नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों को भगवान ने क्या बोला? महात्मा। तो प्रभुपाद कई बार बोलते थे इनडायरेक्टली कि महात्मा टाइटल कोई पॉलिटिकल टाइटल नहीं है। जैसे भारत में किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा महात्मा कहा जाता है, आप सबको पता ही है। तो प्रभुपाद बोलते हैं वो महात्मा नहीं है। महात्मा कौन है? जो श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय लेता है। ठीक है, हरे ओके। कृष्ण प्रभु, एक बात पूछूं? आप पूछिए। प्रभु ये जैसे इंसान का शरीर, या ये तो मेटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं इसको, तो ये दुनिया जो है ये मैटर से तैयार होता है, तो हम्म। मैटर जो है वो खराब हो जाता है, तो इसलिए हम लोग तो मैटर से बने हुए हैं, पर भगवान एंटी मैटर है ना? देखिए, हम भी मटेरियल नहीं है, हम भी स्पिरिचुअल हैं, भगवान भी स्पिरिचुअल हैं। पर हमने ये भौतिक शरीर धारण कर लिया है, भगवान भौतिक शरीर धारण नहीं करते हैं। तो मतलब ये, आत्मा जो है वो तो स्पिरिचुअल है, बाकी ये बॉडी जो है वो मैटर है। हाँ, तो हम लोग कौन है? आत्मा है या शरीर है? आत्मा है। हाँ, तो हम भी स्पिरिचुअल हैं। हाँ, वो बॉडी धारण किए हुए हैं, तो वो मैटर से बना हुआ है। हाँ हाँ, तो वो मैटर से बना हुआ है। लेकिन भगवान कभी भी मेटेरियल बॉडी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये हमारे में और भगवान में अंतर है। हाँ, मतलब भगवान का जो है सोल है, जैसे हम लोगों का सोल है तो वो सुपर सोल है, तो वो मेटेरियल कोई बॉडी नहीं है, बस हाँ वही बस। उनका रूप है, उनका सोल ही उनका रूप है। हाँ, यस यस। ऐसा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम्म, ठीक है, चलो। जी, हरे कृष्ण। तो अब ऐसे भक्त लोग, ऐसे जो महात्मा है, वो काम क्या करते हैं? क्योंकि भगवान ने बोल दिया देवी प्रकृति आश्रित, तो भाई वो किस तरह की भक्ति करते हैं? अर्जुन पूछता है कि वो आपके चरणों का आश्रय ले रहे हैं या देवी प्रकृति का आश्रय ले रहे हैं। तो कैसे आश्रय ले रहे हैं, कैसे आश्रय ले रहे हैं, भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो अगर हमको महात्मा बनना है तो हमको भी इसको ही फॉलो करना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। हरे कृष्ण में प्रणाम। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य: सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों की कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वो सदैव कृष्ण के गुण गान में व्यस्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में वो निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुण गान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुण तथा उनकी असामान्य लीलाओं को प्रशंसा करते हुए
परमेश्वर की महिमान्वित करे, उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होते हैं, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्य में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु तथा स्मरण है। ऐसे महात्मा अनंत भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सान्निध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वो मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन्हीं लोगों को लिए बनाया गया है जो दिव्य लोक में भगवान का सान्निध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए बाह्यिक फल की प्राप्ति निषिद्ध रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, ये भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सुखम गुरु के निर्देश में इस जीवन के गृहस्थ सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिना बिता सकता है। वो संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो किस तरह की वो लोग भक्ति करते हैं महात्मा लोग? सततम, हमेशा। तो ऐसा नहीं है किसी समय कर्मयोग, कभी ज्ञान योग, कभी अष्टांग योग की पूजा वो करते हैं, पालन करते हैं। वो हमेशा भक्ति करते रहते हैं। न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा नोचितस्तादौ निषेधोस्ति श्री हरे नाम निलुब्धक। जो लोग भगवान हरि का नाम लेने के लिए बहुत उत्सुक हैं, उनके लिए कोई भी देश काल स्थान के उचित अनुचित होने की कोई जरूरत नहीं है। हर समय वो कीर्तन कर सकते हैं। तो सततम कीर्तन तो माम। तो जो नए भक्त हैं उनके लिए सततम का मतलब होता है डेली, रेगुलरली। हाँ, कि कम से कम हाँ इतनी देर तो हमको जब करना ही करना है, इतने नंबर तो करना करना है। और जैसे जैसे व्यक्ति एडवांस करता है तो फिर वो दिन भर ही कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी जप कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हमेशा भगवान का ध्यान दिन भर रहता है। और फिर क्या लिखा हो, यतंतश्च दंडवतः। यतंतस में शब्द का जो प्रयोग किया गया वो यतंती। यतंती मतलब होता है हार्ड वर्क। हाँ, तो जिस तरह से आ, अगर मान लीजिए कोई गृहस्थ है और धन कमाना चाहता है, तो वो क्या करता है, किसी धनी व्यक्ति के पास में जाता है, उसके अंडर काम करता है। किस लिए करता है? ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। उसी तरह से मेरा भक्त भी भगवान कह रहे हैं, वो क्या करता है, वो भक्तों के समाज में जाता है। और भक्तों के समाज में जाने के बाद वो श्रवण कीर्तन ये सब करता है। किस लिए करता है? ताकि वो मुझे प्राप्त कर सके, कृष्ण प्रेम की धन को प्राप्त कर सके।
और फिर वो क्या करते हैं, एक बार वो प्राप्त हो जाता है तो हमेशा वो गीता भागवतम पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हम्म। और दृढ़ व्रत रखते हैं। दृढ़ व्रत मतलब क्या है? मैं कम से कम इतना जब डेली करूंगा, कम से कम इतनी बार मैं भगवान को, भक्तों को प्रणाम जरूर करूंगा। हम्म। या फिर कम से कम इतनी बार तो मैं गीता के सारे श्लोक रिसाइट जरूर करूंगा, या फिर सुनूंगा उसको ताकि याद करे, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो इस तरह दृढ़ व्रत धारण करते हैं भक्त लोग। हाँ। और फिर क्या लिखा हुआ है? इस तरह से श्रवण कीर्तन करते हुए मेरे चरणों की वो सेवा करता है। और करते करते क्या होता है, नित्य युक्ता उपासते, वो नित्य मेरे से युक्त हो जाते हैं। तो भक्तों का अगर आप जीवन देखेंगे, दिन भर कृष्ण से कनेक्टेड रहता है। सुबह सुबह तो मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, जब करना है। दिन में भी जब जॉब करने जाते हैं तो फिर ये रहता है कि हाँ भाई पैसा कमाना है। किस लिए कमाना है? ताकि भगवान की सेवा चलती रहे, भक्तों की सेवा चलती रहे, हमारी भक्ति चलती रहे। उसका प्लान बनाते रहते हैं, किस तरह से हम इतना पैसा कमा लेंगे ताकि एंड में आराम से सिर्फ भक्ति करते रहें, भक्ति एनहेंस करें। और फिर शाम को आते हैं तो फिर कभी कुछ क्लास चल रही है, कीर्तन चल रहा है, लेते हैं तो प्रसाद लेते हैं। तो इस तरह से नित्य युक्त उपासते है। तो जैसे ब्रजवासी सारा काम करते हुए हमेशा कृष्ण में मग्न रहते थे, उस तरह से भक्त लोग भी प्रयास करते हैं कि वो हमेशा क्या कर रहे हैं, कृष्ण में ही मग्न रहें। तो नित्य युक्ता उपासते। हम्म। तो ये महात्माओं का काम है। ये महात्मा का काम है कि हमेशा कृष्ण में से युक्त रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये टाइम कृष्ण का है, ये टाइम हमारा है, नहीं। सारा टाइम कृष्ण के लिए ही है। हम्म। फिर लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनन्य भक्त नहीं है। हम्म। तो जो अनन्य भक्त नहीं है, ऐसे लोग क्या करते हैं? तो अभी तक भगवान ने अनन्य भक्तों के बारे में बताया है। अब भगवान क्या करने जा रहे हैं? अब भगवान उनकी तुलना करने जा रहे हैं जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनसे। क्योंकि जब तक आप कंपैरिजन नहीं करते हैं तब तक समझ में नहीं आता है कि ये चीज कैसे श्रेष्ठ है। जैसे भक्तों के साथ भी कई बार क्या होता है, जब नए नए आते हैं ना, तो हर भक्त शुद्ध भक्त दिखता है, सबको दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा लगता है कि बस हम तो कोई अलग जगह आ गए हैं। लेकिन भक्तों संग में रहते 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 फिर भक्त लोगों को भी हम लोग चीपली लेने लगते हैं। अरे मैं खाता हूँ तो ये तो मेरे से डबल खाता है। हाँ। मैं कम से कम ध्यान में पूर्वक जब कर रहा हूँ, ये तो यहाँ घूमते घूमते जब कर रहा है, ठीक से नहीं कर रहा है। तो इस तरह का मन में आने लगता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम देखना चाहिए, उनकी भक्तों की तुलना करनी चाहिए कहाँ से, बाहर के लोगों से। अब बाहर के लोगों का अगर देखा जाए, उसकी तुलना में कम से कम भक्त लोग चार नियम तो पालन कर रहे हैं ना, कम से कम सोलह माला जप तो कर रहे हैं ना। तो उन्हीं कंपेरिजन में तो भक्त लोगों की जो स्टेटस है बहुत हाई है। इवन जो अन्य धर्मों के जो सबसे ऊपर के लोग होते हैं, वो लोग भी सब, वो लोग तो कई बार गौ मांस भी खाते हैं। तो उसकी तुलना में तो कम से कम भक्त बहुत अच्छे हैं। इसलिए भगवान भी क्या कर रहे हैं, भक्तों की तुलना अन्य आ, योगियों से, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, इनसे कर रहे हैं। तो 15 नंबर श्लोक में भगवान उनके बारे में बताते हैं। ज्ञान यज्ञ न चापी अन्य, अन्य मतलब बाकी लोग जो है, जो शुद्ध भक्त नहीं करते हैं। यजंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ राजेश को पढ़िए। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके हृदय
अहृदय रूप में, विविध रूपों से में तथा विश्व रूप में करते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आता है अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनमें भी निम्न होते हैं। इन्हें तीन कोटियों में रखा जाता है। पर परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, दूसरा परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, तीसरा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्रधान भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वो अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा हैं। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान बताते हैं कैसे शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं, पर ज्ञान यज्ञ न चापि अन्य, पर शुद्ध भक्तों के अलावा भी कुछ लोग हैं। हाँ, जो यजंतो माम उपासते, जो मेरी उपासना करते हैं। किस लिए करते हैं? अपनी अलग अलग इच्छाओं के कारण करते हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ दुख नहीं चाहिए, इस तरह से मेरी उपासना करते हैं। तो ये कौन लोग हैं? तो पहले कौन है? ज्ञान, हाँ, एकत्वेना, जो स्वयं की पूजा करते हैं ये सोच के कि हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे लोग कई बार मायावादी होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये कैटेगरी हो गई एकत्वेना। फिर प्रकृत्वेना। पृथक्त्वेना का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। तो पहले कौन हो गए? मायावादी हो गए। दूसरे कौन हो गए? जो पृथक्त्वेना, जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने वाले हैं। और तीसरे विश्व तो मुखम, जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। जैसे वो लोग कई बार ध्यान करते हैं दिन के समय कि ये जो पहाड़ हैं भगवान की हड्डियां हैं, जो नदियां हैं वो भगवान की नाड़ियां हैं। जो घास फूस है, ये सब भगवान के शरीर के बाल हैं। तो इस तरह से वो लोग भगवान पे ध्यान करते हैं, विश्व को, पूरे विश्व को भगवान मान लेते हैं। या फिर रात के समय वो क्या करते हैं? वो तारों को देखते हैं, जो कि शिशुमा जैसा उनको दिखाई देता है। शिशुमा मतलब इन्वर्टेड डॉल्फिन, उसका वर्णन भी भागवतम में आता है। तो उसको देख के उस पर ध्यान करते हैं। तो इस तरह के भी लोग हैं। तो इस तरह से आ, जो लोग महात्मा वाली पूजा नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं? वो इस तरह से अलग अलग सेवा वो करते हैं, पूजा करते हैं। तो पहले वाले क्या बताया था? जो अपने आप को ही भगवान मान बैठते हैं। तम वा अहम अस्मि भगवो देवते हम वे तम असी। मैं वो हूं,
वो मैं है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं। तो ऐसे लोग ज्ञान योग का पालन करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं, और फिर ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से वो लोग अपने में और भगवान में, पूजा करने वाले में और जो पूजा जिसकी पूजा होती है, उनमें कोई अंतर नहीं देखते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एकत्वेना। फिर दूसरा कैटेगरी कौन सा है? जो अपने में, भगवान में और सब में अंतर देखते हैं, और उनके लिए बहुत सारे भगवान हैं। हम्म। तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं? आदित्यो ब्रह्मति आदेशः, सूर्य ही ब्रह्म है, सूर्य भगवान ब्रह्म है। या फिर वो कभी गणेश की, कभी कार्तिक किसी की पूजा करते रहते हैं। हम्म। और फिर हमने बताया कौन? जो विश्वरूप के उपासक होते हैं। तो विश्वरूप की उपासना करने से भी क्या होता है? उससे भी व्यक्ति के पाप कम होते हैं। और पाप कम होते होते फिर वो अगर शुद्ध भक्ति, अगर शुद्ध भक्त का वो मिल जाता है, संग मिल जाता है, तो वो लोग भी भक्ति कर सकते हैं। तो जो पहले हुए उनको बोलते हैं अहंगुर उपासना, जो अपनी ही पूजा कर रहे हैं। दूसरे होते हैं उनको बोलते हैं प्रतीक उपासना। हाँ, जो अलग अलग प्रतीकों को भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। हम्म। और तीसरे लोग जो है उनकी उपासना को कहते हैं विश्व रूप उपासना, जो भगवान का विश्व रूप है उसकी उपासना करते हैं। तो ये तीन तरह के लोग हैं जो भगवान कहते हैं जो मेरी उपासना करते हैं। ठीक है। अब किस तरह से आ विश्वरूप उपासक कौन होते हैं? तो जैसे भगवान ने अभी तक क्या किया है, ज्ञान योगियों के बारे में बताया। और भगवान ने, खैर ज्ञान योगियों को और एलोबरेटली 13 नंबर चैप्टर से भगवान बताएंगे, पर थोड़ा सा बताया है। और किसके बारे में बताया है? कर्मयोगी के बारे में बताया है, कर्म कांडियों के बारे में बताया है। लेकिन विश्वरूप उपासक के बारे में ज्यादा नहीं बताया। तो किस तरह से विश्वरूप उपासक भगवान की पूजा करते हैं, वो भगवान 16 नंबर श्लोक से बताते हैं। हम्म। अहम कर्तुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। हाँ, पढ़े इसका अर्थ होता पर। पढ़े प्रभु। हाँ जी, पढ़िए मत। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तात्पर्य: ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्म कांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, वो पिछला श्लोका का एक सवाल जस्ट पूछ रही थी। हम्म। वो आप बोले ना, मायावादी जो खुद को ही भगवान मानते हैं, तो जो खुद को भगवान मानते हैं वो तो भगवत धाम कभी नहीं जा पाएंगे, ऐसा आप बोले। हाँ, तो इसमें भगवान कौन सा बोल रहे हैं कि ये लोग भगवत धाम जाएंगे? भगवान ने तो नहीं बोला है ना। ये तीन तरह के लोग भगवत धाम थोड़ी ना जानते हैं। पर मतलब इस मायावादी जो भगवान खुद को भगवान मानते हैं, वो
वो भगवत धाम नहीं जाएंगे, पर वो भगवान कह रहे हैं वो पूजा, वो भगवान का ही पूजा हुई ऐसा। भगवान बोलते इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मेरी पूजा करते हैं अलग अलग तरीकों से। तो ये तीन तरह के भगवान ने बताए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग भक्ति कर रहे हैं, ये लोग कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये इनडायरेक्टली भगवान की पूजा करते हैं अलग अलग तरीकों से। तो जैसे, इसको भक्ति नहीं माना जाएगा, पूजा भी नहीं नहीं माना जाएगा। नहीं नहीं, इसको भगवान की भक्ति नहीं माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा? ये भगवान की इनडायरेक्ट वर्शिप है। देखिए, इनडायरेक्टली सब लोग ही भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्यों? किसकी कर रहे हैं? माया की पूजा कर रहे हैं। माया कौन है? भगवान की माया है। तो हो हिसाब से, तो भगवान बता रहे हैं इस तरह के तीन तरह के लोग हैं जो भक्त नहीं है बट इनडायरेक्टली मेरी वर्शिप करते हैं। इनडायरेक्ट मतलब या तो भगवान की शक्तियों की पूजा करते हैं या स्वयं की पूजा करते हैं इस तरह से, क्योंकि हम भी भगवान की शक्ति है ना। तो शक्तिमान की पूजा नहीं कर रहे हैं, शक्ति की पूजा कर रहे हैं। ठीक। अच्छा अच्छा, जी जी। तो ये डायरेक्ट वर्शिप नहीं है, इनडायरेक्ट है। जी। अच्छा, 16 नंबर ना। तो किस तरह से वो लोग पूजा करते हैं? तो अग्निष्टोमा आदि यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं वो लोग। हम्म, जैसे कि इस श्लोक में बताया है, अहम क्रतुर अहम यज्ञ। जो भी अगर मान लो कोई वैदिक रिचुअल कर रहा है, वेदों का फॉलो करने वाला है, तो भगवान बोलते हैं वो रिचुअल कौन है? मैं हूं। वो यज्ञ कौन है? मैं हूं। स्वधा हम, जो भी लोग स्वाहा स्वाहा करके, या स्वधा, स्वधा जनरली एक्चुअली बोलते हैं जब लोग पितरों को यज्ञ करते हैं। स्वाहा बोलते हैं जब अग्नि की पूजा करते हैं, और स्वधा बोलते हैं जब वो पितरों के लिए पूजा करते हैं। क्योंकि स्वधा जो है वो आर्यमा की पत्नी का नाम है। स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है। तो इस तरह से जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, औषधम, तो वो कौन है? वो भगवान बोलते हैं, वो भी मैं ही हूँ। जो लोग अलग अलग औषधियां उनको ग्रहण करते हैं या फिर उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान बोलते हैं वो भी मैं ही हूँ। मंत्रो हम, जो अलग अलग यज्ञों में मंत्र उच्चारण होते हैं, भगवान बोलते हैं वो भी मैं ही हूँ। हाँ। अहम एवाज्यम। आज्यम का मतलब होता है घी। तो जो यज्ञ में घी लगता है, भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। अहम अग्नि, जो अग्नि जलती है यज्ञ में, भगवान बोलते हैं वो भी मैं ही हूँ। और अहम होतम, जो भी उसमें आ आहुति दी जाती है, भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। क्योंकि सब कुछ क्या है? ये भगवान की ही आ वो है, शक्तियां हैं। तो इस तरह से कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ लोग भगवान को यज्ञ का मूर्तिमान स्वरूप समझते हैं और वैसे पूजा करते हैं। ये भी एक तरह की विश्व रूप की उपासना है। जैसे अगर आप देखें, जब वराहदेव आते हैं, तो वराहदेव का वर्णन पूर्ण रूप से यज्ञ के पैराफर्नेलिया के रूप में किया गया है। भागवतम में आता है ये, तीसरे स्कंद में आता है, थर्ड कैंटो में। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं ये भी एक तरह की क्या है? विश्व रूप की उपासना है। तो अन्य क्या उपासनाएं हैं विश्व रूप की, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टेक्स्ट नंबर 17 से। ठीक है, तो अभी एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की शील जय प्रभुपाद की जय। वांछा जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। जय।